Assalamualaikum students. Welcome to the ChemQuest and in the class of Basic Organic Chemistry. Today in this class we will discuss about conformational isomerism, which is the second form of stereoisomerism, and we will discuss this conformational isomerism in this lecture with reference to ethane. This is the 12th lecture of the series isomerism. So if you are interested and want to find the previous lectures, I will drop the link down in the description, so you can go to the description and go to these lectures. What is conformational isomerism? In chemistry, conformational isomerism is a form of stereoisomerism in which the isomers can be interconverted exclusively by rotation about formally single bonds. So this isomerism, actually this is the isomerism which is related to the rotation about single bonds. Such isomers, these are generally referred to as conformational isomers or conformers. तो अब rotation about single bond actually does not need any significant amount of energy. Single bond के इर्द गिर्द एटम्स की रोटेशन के लिए उनको ब्रेक करने की और दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द फ्री रोटेशन होती है और इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती और इजीली एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी रोटेशन जो कि सिंगल बॉन्ड के ऐसे आइसोमर्स जो कि सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द रोटेशन की वजह से बनते हैं उनको हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं या फिर दे हैव अ स्पेसिफिक नेम ऑफ कन्फॉर्मर्स। ओके, इसके अलावा क्या है कि रोटामर्स का वर्ड हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं when the rotation leading to different conformations is restricted rotation in the sense that there exists a rotational energy barrier that needs to be overcome to convert one conformer to another. अच्छा, अब इसमें यह है कि अगरचे इनके लिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक कन्फॉर्मर को दूसरे कन्फॉर्मर में कन्वर्जन के लिए, लेकिन फिर भी देयर इज अ बैरियर टू द रोटेशन, तो उस बैरियर को ओवरकम करना होता है। और जब हम इस सेंस में इन कन्फॉर्मर्स की तारीफ करते हैं तो हम इनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं रोटामर्स, ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स द एनर्जी which is required for the conversion of one isomer to the other. Conformational isomers are thus distinct from the other classes of stereoisomers for which interconversions necessarily involves breaking and reforming of chemical bonds. I have already told you this point कि conformational isomerism के लिए हमें bond की breakage या new bond की formation नहीं required होती। The rotational barrier or barrier to rotation is the activation energy required to interconvert rotamers. तो जो रोटेशनल बैरियर है उसको सरमाउंट करना जरूरी होता है एक रोटामर को दूसरे रोटामर में कन्वर्जन के लिए, और ये इसको फिर एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दिया गया है। तो जब तक मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी अगर मॉलिक्यूल के पास नहीं होगी तो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म भी पॉसिबल नहीं होगा। बट दिस इज सच अ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मॉलिक्यूल आमतौर पे मॉलिक्यूल के पास ये एनर्जी प्रेजेंट होती है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, और इस तरह से कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल होती है आसानी से। So now we will be discussing about the conformational isomerism in ethane specifically. In ethane, rotation of one methyl group with respect to the other about the carbon-carbon single bond gives an infinite number of conformations, each of which has certain energy associated with it. तो इथेन में जैसे ही मॉलिक्यूल की रोटेशन होती है मिथाइल ग्रुप की, दो मिथाइल ग्रुप्स हैं आपको पता है इथेन के अंदर, तो ये कार्बन कार्बन के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो इससे आपको इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस मिलती है और हर एक के साथ एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएट होती है। So one of the conformations which has the lowest potential energy उसको हम बोलते हैं staggered conformation.
ठीक है। वैसे तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबल कन्फर्मेशंस पॉसिबल फॉर इथेन, तो लेकिन जाहिर है हर एक के साथ एनर्जी एसोसिएटेड है। तो जो लोएस्ट पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी वाली कन्फर्मेशन होगी इथेन की, उसको हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन का नाम देंगे, और जिसकी हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन का नाम देते हैं। So in this image, you can see different projection formulas of ethane. So here under this column, these are the staggered conformation for rotation about the carbon-carbon bond in ethane. These are the staggered conformations और इनको ये different तरीकों से project किया गया है। So this is the perspective formula. ठीक है। अब ये वाला जो है ना, मतलब सिंपली जो फॉर्मूला हम इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं ये वो वाला है। दिस इज साहॉर्स प्रोजेक्शंस, और असल में ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज द साहॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। अच्छा, अब इसमें क्या है, साहॉर्स वाले में ये कार्बन है एक और इसके पीछे ये दूसरा कार्बन है, और इसमें देखें कि ये जो हाइड्रोजन्स की पोजीशन है उनको इस तरह से डिपेक्ट किया गया है that these hydrogens these are at maximum distance apart from each other, and this is the Newman projection। और न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप ज्यादा आसानी से मतलब समझ सकते हैं कि ये वाले हाइड्रोजन्स जो हैं असल में ये एक आप कह सकते हैं इथेन का यहाँ पर अगले वाला यहाँ पर कार्बन होगा, और इसके बिल्कुल पीछे यानी वो नजर भी नहीं आ रहा बट ऑब्वियसली इट एग्जिस्ट, तो इसके बिल्कुल पीछे दूसरा कार्बन होगा। अब फर्ज करें कि ये वाले 3 हाइड्रोजन आगे वाले कार्बन के साथ अटैच हैं और ये वाले 3 हाइड्रोजन ये पीछे वाले कार्बन के साथ अटैच हैं। तो इस तरह न्यूमैन के प्रोजेक्शन में ये दिखाया गया है कि these carbons as well as these hydrogens these are at maximum distance apart from each other। अच्छा, अब क्या होता है कि आफ्टर एवरी 60 डिग्री रोटेशन जो इथेन की स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है वो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में चेंज हो जाती है। ठीक है। अब ये पर्सपेक्टिव फॉर्मूला है इथेन की इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन का, और साहॉर्स प्रोजेक्शन में ये अगर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन का है तो ये जो है वो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन का फॉर्मूला है। यानी जब 60 डिग्री पे ये एटम्स रोटेट करेंगे अबाउट दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो आपके पास आप देख सकते हैं कि जब ये 60 डिग्री पे कार्बन कार्बन के इर्द गिर्द ये वाले हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रोटेट करेंगे, तो जब 60 डिग्री पे रोटेट करेगा तो ये हाइड्रोजन इस पोजीशन पे आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और इसी तरह ये हाइड्रोजन इस पोजीशन पे चला जाएगा और यहाँ पर इस तरह से आपको स्ट्रक्चर में इस तरह से मिलेगा। अब देखें इस तरह से स्ट्रक्चर में जैसा कि नजर आ रहा है दीज आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स हैं these are at minimum distance apart from each other। Actually you can understand this from Newman projection। ठीक है। अब इसमें देखें यहाँ पर ये कार्बन है, इसके साथ ये वाले हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इसके पीछे जो दूसरा कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, you can see that these hydrogens these are very close to the hydrogens which are attached to the front carbon। ठीक है। तो these are at minimum distance apart from each other, while in staggered conformation these hydrogens, as you can see, the hydrogens which are attached to the front carbon, this number 1 number 2 and number 3, and the hydrogen which are attached to rear carbon, यानी पिछले वाले कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन होगा, ये वाला और ये वाला, these are at maximum distance apart। अच्छा, अब जो मिनिमम डिस्टेंस अपार्ट है, तो अब मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है कि दोनों हाइड्रोजन जो हैं मतलब वो इतने डिस्टेंस पे रहेंगे सो दैट दे कुड ओवरकम देयर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स, यानी जाहिर है वो एक खास डिस्टेंस तक ही करीब आ सकते हैं, उससे ज्यादा उनके इलेक्ट्रॉन्स उनको करीब आने नहीं देंगे। तो इसको फिर जहां पर मिनिमम डिस्टेंस अपार्ट है ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, जहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट है ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। So staggered and eclipsed conformations in ethane। अब ये staggered conformation की full definition यहाँ पे दी गई है। This is the conformation in which the hydrogen atom attached to each carbon atom are at a maximum distance apart, that is perfectly staggered।
This has the lowest potential energy and is called the staggered conformation. तो जो staggered conformation है उसमें हाइड्रोजन एटम जो कि हर कार्बन के साथ अटैच हैं वो ज्यादा से ज्यादा फासले पे होते हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं perfectly staggered condition और इसकी lowest potential energy होती है। दूसरी फॉर्म अच्छा जैसे ही बॉन्ड रोटेट करता है तो अब लोएस्ट एनर्जी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है until the eclipsed conformation is reached यानी 60 डिग्री की जब रोटेशन कंप्लीट हो जाती है तो स्टैगर्ड कंफर्मेशन फुली इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है और वहां पर एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो अब इसको अगर हम फर्दर रोटेट करेंगे यानी जब वो मैक्सिमम एनर्जी पे चला जाएगा तो फर्दर रोटेशन जो है वो एक्चुअली एनर्जी को दोबारा से डिक्रीज कर देगा, यहाँ पर इंक्रीज नहीं आएगा डिक्रीज आएगा। यानी लोएस्ट एनर्जी पे स्टैगर्ड कंफर्मेशन होगी, हाईएस्ट एनर्जी पे इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन होगी और इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन से दोबारा से मूव करेंगे रोटेशन होगी तो एनर्जी दोबारा से डिक्रीज करना शुरू कर देगी। लेट मी करेक्ट इट। तो यहाँ पर ये इंक्रीज नहीं आएगा, यहाँ पे ये डिक्रीज आएगा। सो बी केयरफुल। ओके, सो नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ टॉर्शन या डाइहीड्रल एंगल। द एंगल ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ टॉर्शन और डाइहीड्रल एंगल। तो अब जो मतलब स्टैगर्ड कंफर्मेशन से इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन फॉर एग्जांपल इथेन में जाने के लिए जो एंगल है उसको एंगल ऑफ टॉर्शन बोलते हैं या फिर उसको डाइहीड्रल एंगल बोलते हैं। तो अब ये देखें, नाउ वी हैव द डेफिनेशन ऑफ इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन, द कंफर्मेशन इन विच द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू ईच कार्बन एटम आर एट अ मिनिमम डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, वो वाली कंफर्मेशन जिसमें हाइड्रोजन एटम हर कार्बन के साथ जो अटैच हैं वो एक मिनिमम डिस्टेंस पे हैं, तो उसको इस कंडीशन को हम बोलते हैं परफेक्टली इक्लिप्स्ड कंडीशन। ठीक है, और जो इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन है उस कंडीशन में मॉलिक्यूल हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी पे होता है और इसको हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। ओके, सो अब इसमें देखें ये 3D मॉडल्स दिए गए हैं स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन के। अब यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये फ्रंट कार्बन है और इसके साथ लगे हाइड्रोजन्स को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके एग्जैक्टली पीछे जो पीछे वाला कार्बन है, रियर कार्बन जिसे हम बोलते हैं, उसके साथ जो हाइड्रोजन है उनको ये पर्पल कलर्स से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह से ये इथेन की स्टैगर्ड कंफर्मेशन का न्यूमैन प्रोजेक्शन है। अच्छा, ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है। ठीक है, बॉल एंड स्टिक मॉडल क्या होता है ये मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से बताया था, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बॉल एंड स्टिक मॉडल जो है, जिस तरह बच्चों के ब्लॉक्स के जरिए वो डिफरेंट फॉर्मेशंस बना सकते हैं, लाइकवाइज विद द हेल्प ऑफ बॉल्स एंड स्टिक्स, ठीक है, आप ये मॉलिक्यूल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें बॉल एंड स्टिक मॉडल में कार्बन को जो है वो ग्रे बॉल से रिप्रेजेंट किया जाता है और हाइड्रोजन को आमतौर पर इससे भी लाइट ग्रे मॉडल से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, लेकिन आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। जैसा कि यहाँ पर ये जो फ्रंट कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं उसको ये देखें मैरून बॉल से रिप्रेजेंट किया गया है और नीचे आपको ये एक और ग्रे कार्बन पीछे नजर आ रहा है, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं उसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है और ये जो आप स्टिक्स देख रहे हैं ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस तरह से बॉल एंड स्टिक मॉडल के जरिए आप अपनी मर्जी की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या होगा कि जो आपके पास स्टैगर्ड कंफर्मेशन है उसमें हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट हैं और जब अगर आप इसको 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे देन यू विल रीच इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन, जिसमें ये आप देख रहे हैं कि ये फ्रंट और रियर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। ठीक है, तो और इस तरह आपके पास ये इथेन की इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन बन जाती है। अच्छा जी, इक्लिप्स्ड कंफॉर्मर इज 12 किलो जूल पर मोल हायर इन एनर्जी।
अच्छा, अब ये जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, इसको अगर हम इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक एनर्जी बैरियर जो आपको अबूर करना पड़ेगा वो है 12 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इथेन में की इक्लिप्स्ड में कन्वर्ट हो, सो देन द मॉलिक्यूल आफ्टर रोटेशन ऑफ 60 डिग्री मस्ट बी हैविंग 12 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। अच्छा जी, इन द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन द कार्बन हाइड्रोजन ऑन द फ्रंट एंड बैक कार्बन, रियर कार्बन की बजाय ये बैक कार्बन जो है, ये ज्यादा आसान लफ्ज है बट उस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा था। सो एनीवेज, फ्रंट एंड रियर कार्बन या फिर बैक कार्बन, दीज आर अलाइंड विद ईच अदर विद डाइहीड्रल एंगल ऑफ 0 डिग्रीज। अच्छा, अब इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑन द फ्रंट एंड बैक कार्बन्स are aligned with each other with dihedral angles of 0 degrees। तो इस कंफर्मेशन में ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं वो इस तरह से अलाइंड होते हैं कि इनके दरमियान जो डाइहीड्रल एंगल है वो सिर्फ 0 डिग्री का होता है, यानी एक्चुअली दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, और उनके दरमियान देखें किसी भी एंगल का कोई डिफरेंस ही नहीं है। जबकि स्टैंडर्ड कन्फर्मेशन में क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑन द रियर कार्बन लाई बिटवीन दोज ऑन द फ्रंट कार्बन विद डाइहीड्रल एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। जबकि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इथेन की स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं ऑन द रियर कार्बन लाई बिटवीन दोज ऑन द फ्रंट कार्बन विद डाइहीड्रल एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। तो इसमें यानी जो फ्रंट कार्बन का इस रियर कार्बन वाले हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड एंगल है या जिसे हम डाइहीड्रल एंगल भी कहते हैं वो 60 डिग्री का है। जबकि इस केस में फ्रंट कार्बन का, ठीक है, रियर कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन है इसका जो डाइहीड्रल एंगल है वो 0 डिग्री का होता है। इसी वजह से ये दोनों मतलब हाइड्रोजन्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। इसको मैं एक दफा से फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है इसमें ये फ्रंट कार्बन है और इसके बिल्कुल पीछे रियर कार्बन है, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन जो दिखाया गया है ये रियर कार्बन के साथ अटैच है और ये हाइड्रोजन जो है वो फ्रंट कार्बन के साथ अटैच है। तो इस फॉर्म में क्या है कि कार्बन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है on the rear carbon lie between those on the front carbon with dihedral angle of 60 degrees। तो इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ जो डाइहीड्रल एंगल है वो 60 डिग्री का है, जबकि इस फॉर्म में इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड एंगल है वो 0 डिग्री का है। अच्छा जी, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरह से स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन का एनर्जी स्टेटस है। ये इस साइड पे देखें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और इधर ये डिग्रीज में रोटेशन दी गई है, राइट। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये पहले यहाँ पर ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है हाईएस्ट एनर्जी पे, दिस इज द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन एंड आफ्टर 60 डिग्री रोटेशन एनर्जी विल बिकम लोएस्ट, और ये आपको ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो है मिल जाएगी। फिर मॉलिक्यूल रोटेट करना शुरू करेगा और जब 60 डिग्री की रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी, यानी 0 से 60 और 60 के 120, तो डिफरेंस तो 60 का ही है, देन यू विल अगेन गेट हियर यू नो ये स्टैगर्ड है और यहाँ पर आपको दोबारा से इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन हाई एनर्जी पे मिल जाएगी। फिर वो बॉन्ड मूव करना शुरू करेगा और लोएस्ट एनर्जी पे फिर आपको एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन मिल जाएगी और फिर ये इक्लिप्स्ड में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर 60 डिग्री रोटेशन। इस तरह से आखिर पे आपको फिर ये हाईएस्ट एनर्जी नजर आ रही है आफ्टर 60 डिग्री रोटेशन, और इस तरह से यू विल अगेन गेट दिस इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन relevant to this highest energy state. This is the difference of energy, that is 12 kilojoule per mole between the staggered and the high energy eclipsed conformation. So the energy changes accompanying the conformational rotation of ethane molecule about the carbon-carbon bond axis. अच्छा, अब torsional strain energy क्या होती है? Force that opposes rotation due to the repulsion of bonding electrons. इसको torsional strain energy कहते हैं, which is actually this barrier to the rotation 12 किलोजूल पर मोल, ठीक है, यानी ये वाली
एक कन्फर्मेशन को दूसरी कन्फर्मेशन में जाने के लिए, या आप कह सकते हैं कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में जाने के लिए जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, चाहिए होगी, उसको हम टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. We do not observe perfectly free rotation. अब देखें कार्बन कार्बन बॉन्ड के इर्द गिर्द रोटेशन तो होती है, बट दिस इज नॉट परफेक्टली द फ्री रोटेशन. देयर इज टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी. ठीक है. देयर इज अ बैरियर टू रोटेशन, जो रोटेशन के लिए एक बैरियर होता है, एंड सम कन्फॉर्मर्स दीज आर मोर स्टेबल देन द अदर. Small energy barriers easily overcome at room temperature. Each eclipsed hydrogen cost 4 kilojoule per mole of torsional energy. तो अब अगर फॉर एग्जांपल ये eclipsed जो है ना हाइड्रोजन्स, अगर आप यहाँ पर देखें ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये eclipsed फॉर्म में है. तो अगर जो eclipsed अगर दूसरे eclipse में actually there are hundreds and thousands of conformations which are between eclipsed and staggered conformations. ठीक है. तो अगर eclipsed conformation ही है और इसका एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन की जगह लेना चाहता हो, तो इसके लिए आपको 4 किलोजूल पर मोल एनर्जी सिर्फ टॉर्शनल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. For ethane, the difference in energy between the staggered and eclipsed conformation is 12 kilojoule per mole, and this difference in energy, this is called the energy barrier. This small barrier to rotation, this is called torsional barrier of the single bond or torsional strain of the molecule, as I have already explained to you. कि अगरचे फ्रिक्वेंटली सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द रोटेशन तो पॉसिबल है, लेकिन जो भी सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द इस रोटेशन को जो फोर्स अपोज करती है, जो इसकी मुखालफत करती है, उसको हम कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन. और इथेन के केस में वो इस टॉर्शनल स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 12 किलोजूल पर मोल, और इसको फिर हम बोलते हैं torsional barrier of the single bond or torsional strain of the single bond in a molecule. A molecule of ethane has to surmount this energy barrier in passing from one staggered conformation to another at normal temperature. But at very low temperature, minus 250 degree centigrade, this conversion is not possible. अच्छा, अब अगर एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से दूसरे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन तक जाने के लिए इथेन के मॉलिक्यूल को इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है. लेकिन अगर वो आम नॉर्मल टेम्परेचर पे ये पॉसिबल होता है, लेकिन अगर बहुत कम टेम्परेचर हो जाए, फॉर एग्जांपल -250 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज क्वाइट लो टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर पे क्या होगा कि मॉलिक्यूलर मोशन, एटम्स की मूवमेंट खत्म हो जाएगी मॉलिक्यूल के अंदर. तो जाहिर है जब वो मूव नहीं करेंगे तो रोटेशन भी पॉसिबल नहीं होगी और कन्वर्जन भी पॉसिबल नहीं होगी. असल में कन्फर्मेशनल जो आइसोमर्स होते हैं उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज दे आर सो क्विकली कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर. और उनकी आइसोलेशन अगर हम करना चाहते हैं तो वो लोएस्ट टेम्परेचर पे पॉसिबल होती है, और उस फॉर्म में हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी लो कर देते हैं कि उनके इर्द गिर्द तमाम तरह की हरकत जो है वो खत्म हो जाती हैं. और इस तरह से क्या होता है कि एक कन्फर्मेशन का दूसरे कन्फर्मेशन में जो इंटर कन्वर्जन है वो खत्म हो जाता है. बट दिस इज ओनली पॉसिबल एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर. At any given moment, some ethane molecule will have enough energy to surmount at this barrier. अच्छा, अब मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे जो कुछ इथेन मॉलिक्यूल हैं, they will have enough energy to surmount this barrier. Most molecule will wag back and forth with their atoms in staggered conformations. अच्छा, अब एक्चुअली क्या होता है कि जो लोएस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन होती है ना, वही ज्यादा स्टेबल होती है, और ज्यादातर मॉलिक्यूल एक गिवन नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो लो एनर्जी होती है, ठीक है. तो लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं मतलब एक दूसरे के साथ टकरा के कुछ ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, और वो इस एनर्जी बैरियर को सरमाउंट करते हैं और चले जाते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में. लेकिन जो ज्यादातर मॉलिक्यूल हैं वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में ही रहते हैं.
Okay. The more energetic one will rotate through eclipsed conformation to the other staggered conformation. तो ज्यादा energetic ones क्या होते हैं, यानी ज्यादातर मॉलिक्यूल तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस की आप कह लें, जो डिफरेंट फॉर्म्स है ना, उन्हीं के दरमियान आप कह लें कि बस घूमते रहते हैं, एक स्टैगर्ड से दूसरी स्टैगर्ड में चले गए। तो जो ज्यादा एनर्जेटिक वंस हैं वो क्या करते हैं, वो 12 किलो जूल पर मोल वाली एनर्जी अचीव करते हैं और फिर वो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में चले जाते हैं। और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो हाई एनर्जी होती है वो स्टेबल नहीं होती, और फिर वो उतनी एनर्जी यानी 12 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करते हैं और दोबारा से स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में आ जाते हैं। This was an interesting lecture about conformational isomerism in ethane. I hope that you people have enjoyed and understood it. And if you have understood, do consider subscribing, liking, and sharing. As you know, sharing is caring. Thank you very much for watching this video. Allah Hafiz.